ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਅੱਜ? How many have come for blessing? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। It is the way you receive the blessing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ And if you want blessing, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਓ। give thanksgiving as an offering to the Lord. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ? How many have ਹਾਲੇਲੂਇਆ। after coming to the house? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? Do you believe He has received your thanksgiving? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜਿਆਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Most of the time that Satan keeps you in the snare. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। He says not your offering shall be accepted. ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। You thank but God did not listen. ਕੀ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ Did God ever tell you ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? that your thanksgiving is not accepted? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, Whatsoever you may be. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। God is so happy when thanks come out of your mouth. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, A small child, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, when he calls his mother mother ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, and just speaking with those broken words, ਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। does mother slap her? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ, Oh, say it nicely, me. ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Mother is happy. ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Child is calling unto me. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, You might not have reached to that righteousness to that ਭਾਵੇਂ level. ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, In holiness you might not have. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ You are proceeding towards the ਤਾਂ Lord ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ and saying unto the ਧੰਨਵਾਦ Lord, ਪ੍ਰਭੂ। thank you Lord. ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ And I want to say, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, as mother is ਇੱਥੇ happy, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ God is being happy with ਕਿ you. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। You are giving Him thanks. ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਲਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, When you just plant a pump, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। water doesn't come out much. ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ You need to pump it for some ਤੇ time. ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And after some time that water is able to be drunk. ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ The time is coming for you, I want to say. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਬਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Spring shall sprout from you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। God is purifying you. ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, Your work is only to follow the Lord all the ਲਗਾਤਾਰ time. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਣਾ, Oh, keep following the ਲਗਾਤਾਰ Lord. ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ, Keep giving Him thanks all time. ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ। Keep speaking always. ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ And I was going to the Bible. ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ And a great word I saw in it, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। which I want to share with you. ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, Here ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। that Jesus said, you are the light of the world. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? How many of you do you believe in this? ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। All do. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। Wheresoever you go, the light shall go. ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। I didn't say. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। The Lord's presence shall be wherever you go. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। Your presence shall be with you. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ I believe it. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ। You are getting winning. ਇਹੋ ਜੀ ਜਿੱਤ Such a victory. ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ And your near ones will ask you, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? where did this victory come from? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ And the word of God says, ਇਹ ਜਿੱਤ this victory ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ comes in the name of Jesus. the ਔਰ Christ. ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। And it comes from the Lord God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਕਾਹਦਾ ਦਿਨ ਹੈ? What is this day? ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। We shall proclaim such a way. ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਤੇ ਵੈਰੀ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah.
ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। This war never stops. ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। It's a warfare. ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, We are ready to receive blessing. ਵਰਦਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, We're ready to take a ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ready to take holiness. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, Ready to take the touch of the Lord. ਔਰ ਵੈਰੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। And the enemy is trying to stop. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। And your victory is happening in the name of Jesus. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, I'm saying you're winning. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, I see you winning. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। I saw you winning. ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। I was listening to a ਉਹ testimony. ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ A man in the hospital. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। 8 liters of water inside of you. You got to just pump it out. ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, With few words I want to say. ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। Showing our Savior is a living God. ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? What happened then? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, When the prayer was done ਖੋਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, and prayer was done from ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। through urinary tract. ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। If it's not a miracle, what it is then? ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? If Jesus is not alive, what is ਮੈਂ this? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, Want to say ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ in the name of Jesus ਸਾਡੀ today, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ every dirt in your ਉਹ life ਡਰੇਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, is about to be ਉਹ drained. ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। It's about to go out. ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀਨੈਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, You're about to be filled with holiness. ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ You're ਹੋ। about to be filled with holiness. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ Where you shall go, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ the ਜਾਵੇਗਾ। light of the Lord shall be with you. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, And many times I have listened like this. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਿਆ ਆ, Oh, you return. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, Oh, that certain man is standing over there. ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਲੈਣੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੰਘਣਾ। Let him pass by and then I will go. ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to say, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ people shall see it from the ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘਣ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਾਂ, that when you pass by, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, you got ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, you got a ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ chance ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। to talk with them. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। God wants to fill you with His might, His power, and His light. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, Sometimes when we are get lost in small prayers. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ God ਹਨ। wants to save others through you. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। Through you, God wants to bring others into His kingdom. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Did you ever see an eagle? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? What does he do? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, When he teaches his kids to fly. ਐਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਠੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? Can you do it like ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਉੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। I want to say you are flying. ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। You will fly like an eagle. ਜਦੋਂ ਈਗਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ When an eagle flies, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, he goes so high. ਥੱਲਿਓਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ You are unable to see from down. ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ You ਯਿਸੂ will ਦੇ ਨਾਮ fly ਵਿੱਚ। so high, people of the earth won't. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਈਗਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, When an eagle teaches her children to fly, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ he takes him to ਉਚਾਈ the heights. ਉਚਾਈ To the heights. ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ And up, as he goes so higher, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ it takes out ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, and the fallings ਫਿਰ ਉਹ ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। now they are struggling and ਜਦੋਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, when they are about to be struck, ਈਗਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, eagle comes, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, goes down, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, carries the ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, takes him to the high, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, and then he gets ਫਿਰ out, ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, and the charcoal ਉੱਡਦਾ ਹੈ, flies, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, tries. ਥੋੜੇ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। After few hours, he makes them to fly. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਡਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ? How many are ready? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Praise the Lord.
ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ You may be sitting, but it looks you are ਤੁਸੀਂ flying. ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ You are learning to fly. ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ Make yourself ready to fly. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ Many just give way. ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ Last year was good. ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ Oh, we got house, ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ got healing, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ This happened. ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ and children went out. ਓ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ Oh, pastor, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ now it's very hard time. ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ Why are you worrying? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਗਲ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ And as the eagle takes a shout up and down and up and down, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ God lets you go up and down and up and down. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ He never abandons and he never forsakes you. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ God teaches you something new. ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ Be ready to ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ Do not be ਕਿ sad. ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ You are coming down. ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ Very soon you're being lifted up. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ Praise be to God. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ Whosoever is near to you, just say, ਘਬਰਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ worry not, you're about to be lifted up. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Do you know as you proclaim what happens? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ You speak and what happens? ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਰ Your word, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ your word in the universe becomes an action. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Whatsoever you want to do, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ start to speak. ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ In few months of time, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ you will see it proceeding back to you. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ What you do or want to do, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ do not ever see. ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Whatsoever you want to do, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ start to proclaim. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ Jesus said, you are the light of the world. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ Can you say, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ I am the light of the world? ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. I am the light of the world I am the light of the world. ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ I am the light of the world. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ If you start to say, the Lord will use you to create light. ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ Have you ever seen a battery? ਬੈਟਰੀ A battery. ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ And the night watchman keeps a battery. ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ What's the work of the battery? ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ He has good eyes. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ He needs a battery. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੈਟਰੀ ਹੈ God's word is battery. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ Just keep it in your heart. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ You will be able to see the things the world cannot see. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ God shall speak with ਜਿਹੜੀਆਂ you. ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ The mysteries. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ It looks to me I'm looking everybody fly. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਉੱਡ ਉਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ Only those can fly who have the prayerful life. ਉੱਡ ਉਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ Only those can fly who repent. ਉੱਡ ਉਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ Only those can fly who love God. ਉੱਡ ਉਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ Only those can fly who want to fly. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਡ ਉਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ Praise the Lord. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਹੋਏ How many are filled of joy? ਭਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ Oh, are you? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ I see the spirit of peace coming in here. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ God has given you the mind. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ A new strength. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ Let's go to the word of God. ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ We will go into Mark
मरकस 11 उसदी 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Mark 11 verse 11, let us see what it says. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना कर, जो कुछ हेलो जो कुछ 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 इसका मतलब क्या है? जो कुछ आप कुछ भी प्रार्थना कर सकते हैं। हेलो, आप कुछ भी, लेकिन बात यह है प्रार्थना कौन कर सकता है? तुम जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो, प्रतीत करो कि तुम्हें गया, तुझे मिल गया है, तुझे मिल क्या है। बात यह है प्रार्थना कौन कर सकता है? भाई साहब, प्रार्थना कौन कर सकता है? जो प्रभु के वचन को मानता है वो प्रार्थना कर सकता है। अगर वचन ही नहीं माना, गुरु की बात नहीं मानी, तो कौन आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा? आज दिक्कत क्या है? हम गुरु की नहीं मानते। गुरु कौन है? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह गुरु है। गुरु ने क्या बोला है? एवरीडे प्रार्थना करो। क्यों? आत्मा में, विश्वास में सरगर्म रहने के लिए, आत्मा में, विश्वास में बने रहने के लिए। इधर क्यों बुलाता है? हर हफ्ते इधर क्यों आना है? आत्मा में गर्म रहने के लिए बुलाता है। इधर नहीं आएगा तो ठंडा, बोलो, इधर नहीं आएगा तो ठंडा, तो डॉक्टर बोलता है ठंडा हो गया तो आत्मा में आप क्या हो जाएंगे? आप मर जाएंगे अगर चर्च नहीं आएंगे तो। आपका स्पिरिचुअली डेथ हो जाएगा। आप फिर से दारू पिएंगे, गाली देंगे, चोरी करेंगे और सब गंदे काम। अगर चर्च में आएंगे तो आप आत्मा में सरगर्म रहेंगे। आपको डर लगेगा चुगली से, दारू से, चोरी से। आप उधर नहीं जाने वाला जब प्रभु का वचन आपके जीवन में आ रहा है कंटिन्यू। जब आप वचन नहीं सुनेंगे, यहां बैठेंगे नहीं, प्रेयर नहीं करेंगे, तो आपकी बात तो खत्म। इस बात को कंटिन्यू रखने के लिए, जैसे जिस्म में जीते हैं, बॉडी में जिंदा रहने के लिए खाना हम खाते हैं, आत्मा में जिंदा रहने के लिए ये वचन जो आज मैं लेके आया हूं, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप स्पिरिचुअली डेथ हो जाएगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा वो आत्मा में मर चुके हैं। पहले आपने देखा बहुत ताली बजा रहा था, गीत गा रहा था, आज किधर गया? मर गया, वो स्पिरिचुअली डेथ हो गया उसका। अब वो जिंदा हो जाए, ये तो करिश्मा ही है। अगर आप इस बात को समझ जाएं, अगर कोई चर्च में वापस आ रहा है, उसके ऊपर हंसी मजाक मत करो, हंसो मत। वो एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो चुका है, उसके लिए खुशी मनाओ। आप कैसे हंसते हैं वो जानता है। आप उससे मखौल करते हैं कि उससे हमदर्दी दे रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, हमने आपको देखा नहीं था, आज आपको प्रभु के घर में देखा, बहुत खुशी हो गया। अब लगातार आइए ब्रदर, बहन जी लगातार आइए।
आपको देख के सच में मेरा मन खुश हो गया। ऐसा कब बोलेंगे आप? जब आप आत्मा से सरगर्म होंगे, जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, जब आप कंटिन्यू चर्च आएंगे, तब आप देखेंगे कैसा आपके साथ हो रहा है। आपके बोलने से दूसरे के जीवन में एक रोशनी आएगी। अगर आपके बोलने से रोशनी नहीं आ रही, तो जो गुरु ने बोला है, फरमान किया है, आप जगत के चानन हैं, तो आप जगत के चानन तो है ही नहीं। अभी तो आपके अंदर अंधेरा है। इस अंधेरे को भगाने के लिए, अंधेरे में क्या क्या छुपता है? चोर किस चीज को पसंद करता है? अंधेरे को पसंद करता है। दुष्ट आत्मा किन चीजों को पसंद करती है? अगर आपके जीवन में अंधेरा है, 100% नहीं, 120% दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आएंगी। अगर अंधेरा है आपके जीवन के अंदर, चाहे वो प्राउड हो, हंकार आ जाए। अगर आप अधिकारी हैं, अपने बड़े अधिकारी के सामने आप बुलाता नहीं है उसको। अगर आप बड़े अधिकारी की बात नहीं मानते, तो क्या है? वो एटीट्यूड नहीं है, वो अंधेरा है। आप समझिए, अगर आप बाप की बात नहीं मानते, तो अंदर क्या है आपके? क्यों नहीं बात मानते? क्योंकि आपके अंदर अंधेरा है। मां ने बोला जवान बेटी को, अगर बेटी नहीं मानती तो क्या है? उसके अंदर अंधेरा है। अंधेरे की वजह से वो बात नहीं मानती। उन लोगों को पीटने की जरूरत नहीं है, उनको अंधेरे से आजाद करवाने की जरूरत है। वो कब आजाद होंगे? जब आपके जीवन में प्रभु का वचन रहेगा, जब आप प्रेयर वाले होंगे, वो धीरे धीरे वो लोग भी आजाद हो जाएंगे। क्योंकि आप जगत के क्या हैं? चिल्लाकर बोलने, अंधेरे को पता लगे आप क्या हैं। क्या है आप? अगर कोई मुझे बोले कि बोल के बताओ आप क्या है, मैं पता कैसे बोलूंगा? मैं जगत का चानन हूं। आप कैसे बोल रहे हैं? मैं चानन है जी। लगता चानन बीमार है। जो करना है, बाइबल कहती दिल ला के करया करो। जो भी करना है, दिल ला के करो। देखो क्या लिखता है उधर? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीत कर लो। प्रतीत करो, विश्वास करो, मान लो। क्या माने? कि तुम्हें मिल गया। आमीन। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं प्रतीत करें, विश्वास करें। ओह पास्टर जी, हमारे पास इतना विश्वास कहां है? कहां से लेके आए विश्वास? पूरे जगत की आज ये प्रॉब्लम है, विश्वास नहीं है हमारे पास। क्या करें, क्या करें, क्या पीटें, क्या करें? विश्वास नहीं है। कुछ लोग यीशु मसीह के पास गए, बोला प्रभु जी कुछ करो, हमारे पास विश्वास नहीं है, उतना बड़ा विश्वास नहीं है। यीशु ने बोला राई के दाने भी के समान भी विश्वास है तो चलेगा। हेलो, आप समझते हैं? इतना छोटा बीज होता है, गिर जाए तो अंगूठा दबा के उसको नेल से उठाना पड़ता है। अगर आप आए हैं, आपके पास इतना पहाड़ जितना विश्वास नहीं है, तो इतना छोटा सा भी अगर विश्वास है तो चलेगा। आप बिना बरकत के वापस नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। विश्वास नहीं है, क्या करें?
यीशु मसीह के पास आए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। क्या बात है, हमारे विश्वास के लिए कुछ करो। गुरुजी ने क्या बोला, अगर इतना राई के दाने के समान भी विश्वास है तो बोलो चलेगा, पहाड़ उठा देंगे आप। इतना छोटा विश्वास भी हो तो पहाड़ भी क्या हो जाएगा, बोलिए ओ बोलिए, पहाड़ भी। अगर आपके जीवन में ऐसे पहाड़ हैं, अगर सोने चांदी के पहाड़ हैं तो मत उखाड़ना। कहीं चेक करने के मसले में सोने का पहाड़ ही उखाड़ दो। अगर बुराइयों के पहाड़ हैं, कौन से पहाड़, बीमारियों के पहाड़, लड़ाई के पहाड़, बंधनों के पहाड़, अगर ऐसे पहाड़ हैं तो अगर आज आप इस पहाड़ को उखाड़ना चाहते हैं तो आप प्रतीत करें, बोल दें, पहाड़ क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। हालेलुया। इतना आसान है प्रभु के लिए, एक बार ताली बजाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने हैं जो लगता है उन्हें उनके अंदर बल आ रहा है आज। हालेलुया, हालेलुया। आपको गलत फहमी है, आप पहले ही बलवान हैं। हालेलुया। हाँ, आप पहले ही बलवान हैं, अब बस उसको एक्टिवेट करना है आज। हालेलुया। क्या करना है, एक्टिवेट करना है उसे। हाँ, तुम और जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ, तो प्रतीत कर लो, हाँ, कि तुम्हें मिल गया। प्रतीत कर लो, कर लो, प्रतीत कर लो, कर लो। आप समझिए, प्रतीत कर लो, प्रतीत कर लो। यस, समझो, प्रतीत कर लो। समझ में आ रहा है? मतलब बाकी सब छोड़ दो, इतना रखो कि आपने बोल दिया, होने वाला ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है प्रतीत कर लो। क्या कहता है, हेलो, हे सोने वाले जाग, मसीह तुझ पे चमकेगा। हालेलुया। सोने वाले लोगों के ऊपर वो चमकने वाला नहीं है। सुन लो, आपको शोर मचाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आप जिंदा है, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी आप जिंदा हैं, आपको बाइबल भी पढ़ना पड़ेगा आप जिंदा हैं, हर संडे चर्च आना पड़ेगा, टाइम से पता लगे आप जिंदा हैं, आपको दशमांश देना होगा। अभी आज मैंने एक अगुवाई को सुना, वो बोल रहा था व्यक्ति कि मैं दशमांश देना कभी नहीं भूलता, रोटी खानी भूल सकता हूं। इतना पक्का है तो बरकत कैसे नहीं मिलेगी उसे। 100% वो बरकत लेके ही इस धरती पे जिएगा यीशु मसीह के नाम से। देना भी एक धर्मी की पावर है। देने से आपके लॉक खुलते हैं, लॉक। ध्यान रखें, जो पैसा आप कमाते हैं अगर वो आप मिनिस्ट्री में देते हैं, उसके देने से प्रभु आपके लॉक खोल देता है। नए आइडिया, न्यू आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे करें, सेविंग स्टार्ट हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं अगर आप प्रभु की बात मानते हैं। लेकिन परमेश्वर की पवित्र वाणी से आप जुड़े रहना है। अच्छा, एक बार इसको और देखेंगे, इसके बीच और एक बहुत बड़ी बरकत देखेंगे। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। हेलो, इसलिए बोलो, इसका मतलब कोई हमें कुछ कह रहा है,
वो सुने जिसके कान हो। आत्मा कलीसिया से क्या बात करता है, वो सुने। जिसके कान है वो सुने। आपको पता है स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपके कान होते हैं। जैसे आपका सिर दो कानों के बीच में है, ऐसे ही एक आत्मिक दुनिया में आपके पास कान रहते हैं सुनने के लिए परमेश्वर का आत्मा क्या बताता है। इतनी बार सुना, इतनी बार सुना, इतनी बार सुना, फिर भी कुछ याद नहीं रहता। पूछो तो कोई वचन सुनाओ, मुझे नहीं आता, मैं कोई प्रचारक हूं। आप अच्छे बहानेबाज हैं, छूट सकते हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। किसी के आगे चाय रखो, बोलो प्रार्थना कर दो। 10 साल से चर्च आ रहा, बोलता बोला क्या हुआ, प्रार्थना करो। इसका मतलब वो अपने घर भी प्रार्थना नहीं करता चाय पीने के समय। तभी तो गैस बनती है चाय पीने से। सुनो मेरी बात, हाँ, मैं चाहता हूं आप खुश रहें और सुने प्रभु का वचन क्या कहता है। बोलिए क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। कोई बात कर रहा है भाई, आप सुनते नहीं है। वो बोल रहा है मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे कहता हूं। आप सुनते क्यों नहीं? क्या आप बहरे हैं? आप सुन नहीं सकते? वो कुछ कह रहा है। हाँ आगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना कर, हाँ कैसे प्रार्थना करके, कैसे? हेलो, प्रार्थना करके। प्रार्थना तो हम भागते हैं। प्रार्थना 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 उतना ही नीचे होता जा रहा है। ये प्रार्थना में आदमी को इतना मुश्किल क्यों लगता है? एक इतनी बड़ी पावर, उसका नाम लेना आसान नहीं है भाई। इतनी बड़ी पावर, सारी दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, आपको बनाने वाला, आपको सांस देने वाला परमेश्वर, उसकी आपने बंदगी करनी है, उसकी आराधना करनी है। ऐसे कैसे इतना आसान हो जाएगा? जे कोई 80 फुट का झूला है, आप बैठ जाएंगे तो नीचे उतर आएंगे आधे घंटे के बाद। कुछ लोगों को इतना मुश्किल लगता है प्रार्थना करना, इतना मुश्किल। वो पीड़ा में रह सकता है, प्रार्थना नहीं करता। 20 डॉक्टरों के पास जा सकता है, 20 स्कैनिंग करवा सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, प्रार्थना नहीं करता। क्यों? इतनी बार बोला है प्रार्थना कर लो, करता क्यों नहीं है? कारण है क्योंकि इतने बड़े यहोवा परमेश्वर की आराधना में बैठना इतना आसान नहीं है। आप इधर बैठे हैं, 1000 बार नमस्कार करो उसको कि उसने आपको बैठने की अनुमति दी है इधर। हजार बार उसका धन्यवाद करो कि आपको ऐसी चर्च दी गई है, यहां आपका ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अपना चर्च केयर कार्ड बनवा के रखो। ऐसा परमेश्वर जो आपसे इतना प्यार करता है, पहले उसने अपना पुत्र को भेजा और कुर्बान कर दिया। अब इस धरती पर उसने अपने पुत्रों को चुना है जो आपका देखभाल करें, आपके लिए प्रेयर करें, आपका ध्यान रखें।
आपको वचन ले आके दें यहोवा क्या कहना चाहता है और आप क्या चाहते हैं। मैं एक व्यक्ति की बात बताना चाहता हूं। वो इसी हफ्ते मुझे मिले और उसने बताया कि हमारा एक आदमी बीमार हो गया और डॉक्टर ने बोला इसे ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी और 3 दिन के लिए 2.5 लाख रुपया मांगा। हमने बोला डॉक्टर साहब को कि ठीक है आप लगाओ। जब वो बाहर आ गए, रिश्तेदार इकट्ठे होकर बैठे थे, तब उसने बात शुरू की और मुझे बता रहा था कि उस दिन ये सुनकर कि उसकी ऑक्सीजन के लिए 2.5 लाख देने पड़ेंगे, साथ में ट्रीटमेंट भी रहेगा, और वो हैरान हो गए। आपको पता है एक सिलेंडर जो है वो अप्रॉक्स 14,000 रुपए के आसपास मिलता है ऑक्सीजन का, और आप फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर पूरी जिंदगी आप खुदा का सांसों के लिए ही धन्यवाद करते रहो तो भी बहुत कम है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर 14,000, आप फ्री में जी रहे हैं। कितने साल जिएंगे आप, खुदा आपकी आजू लंबी करे। लेकिन देखो बात कितनी बड़ी है। आप बोलते हैं खुदा ने किया ही क्या है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने खुदा के लिए क्या किया? उसने धरती बनाई, उसके नीचे पानी पैदा किया, आकाश बनाया, उसके ऊपर उसने लाइट का इंतजाम करके दिया, पेड़ पौधे सब कुछ, पशु पंछी पक्षी दिए, आपको जीवन दिया। आप चाहते क्या है? आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आज एक विश्वास की गिफ्ट के बारे में मैं बात करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इसको अभी यहां पोस्टपोन करेंगे। आप आए 2 कुरिन्थियों 4 उसका 13 देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यहां एक निहचा का वरदान बात करता है सब लोगों के लिए। बाइबल बताती है एक निहचा का वरदान है, विश्वास का वरदान है जो सबके लिए है। पढ़िए। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। हां, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। ये पंजाबी में देखना, पंजाबी में थोड़ा और क्लियर कर देते हैं थोड़ा। हाँ देखिए, क्योंकि अगर आप इसको पकड़े, पहला वचन जो मैंने पढ़ा था, आप उस वचन के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं अगर प्रभु का वचन आपके साथ में है। देखिए क्या कहता है उसमें, नेचा दा ओहो आत्मा। हाँ, नेचा दा ओहो आत्मा। आत्मा, वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बंदे कहते नेचा नहीं हो रही जी, दिल नहीं टिकदा, धड़कन वध रही है, अज मुश्किल दी घड़ी है। मैं कहना चाहना ये वरदान मंगो, नेचा दा वरदान। क्या करिए आप? नेचा के वरदान को, विश्वास के वरदान को मांगिए। प्रभु आपको जब विश्वास के वरदान देंगे आप बाकमाल बन जाएंगे। यह भी एक वरदान है, यह दूसरे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप विश्वास के वरदान में हैं तो दूसरे लोगों को बहुत आसानी से आप प्रभु का वचन दे सकते हैं। आज आप प्रभु का वचन दूसरे लोगों को क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आप विश्वास के वरदान में नहीं है। जो व्यक्ति विश्वास के वरदान में होता है वो प्रभु की प्रेजेंटेशन
यीशु मसीह के नाम की प्रेजेंटेशन इतने आसान तरीके से कर सकता है कि सुनने वाला खुशी खुशी उसे प्रवान करता है। क्या आपकी लाइफ में यीशु मसीह की प्रेजेंटेशन करने का गिफ्ट है? अगर वो है तो बाइबल कहती है वो विश्वास का वरदान है। अब पढ़िए जरा। हाँ, नेचा दा ओह आत्मा सानू मिलिया है। हाँ, दसो भाई मिलिया है। जे मिलिया है तो एदा काम शुरू करो। बाइबल कहता है अगर आपके पास वरदान है उसकी बेपरवाही ना करना। जो प्रभु ने आपको दे दिया, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो आपकी इच्छा क्या रहती है? अगर मानो कभी आपने पास्टर को सूट दिया, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे अच्छे लगते हैं, तो आपकी इच्छा क्या रहेगी? पास्टर जी बड़े प्यार से लेके आए हैं, इसे जरूर पहनना। समझे मेरी बात? आपकी इच्छा है जो आपने मुझे दिया है मैं उसका इस्तेमाल करूं। प्रभु की इच्छा क्या होगी? जो आपको प्रभु ने दिया है आप भी उसका क्या करना? हेलो, अगर आपके दिल में भावना है तो प्रभु के अंदर भी आपके लिए इच्छा है। आप अपनी इच्छा से नहीं, आप प्रभु की इच्छा से चलें। प्रभु की इच्छा से चलना शुरू करें। आप प्रभु ने आपको जो दिया है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो बिना वरदान के यहां बैठा है। आपको पता है यहां आप बैठे हैं इस पंडाल को सजाने के लिए, इतनी ठंडी में रात को वॉलंटियर यहां काम करते हैं। वो गिफ्ट है उनके पास। मैं इतनी ठंडी में काम नहीं कर सकता भाई, मेरी गिफ्ट नहीं है, उनकी गिफ्ट है, वो करते हैं। उधर चाय बना रहे हैं बनने आपके लिए, उनके पास गिफ्ट है। मैंने जबरदस्ती कहीं भी किसी भी व्यक्ति को नहीं ले आया। यहां गिफ्ट है, आपके अंदर भी गिफ्ट है, आप भी कुछ करो। आप नेचा के वरदान से लोगों के साथ बात करो। परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने की इच्छा आपके मन में आनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के किंगडम के बारे में सोचेंगे, प्रभु आपके बारे में सोचेंगे पर्सनली। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे पर्सनली। प्रभु आपको बढ़ाएंगे पर्सनली। आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे पर्सनली। आप तो सोचता ही नहीं है, आपको अपना ही सोचता है। अब सिलेंडर की कॉपी मिल जाए, अब मीटर की कॉपी मिल जाए, मोटर की कॉपी मिल जाए, वीजे की कॉपी मिल जाए, टिकट की कॉपी मिल जाए, आपको कॉपी चाहिए। प्रभु आपको पूरा किंगडम देना चाहते हैं। हालेलुया। क्या देना चाहते हैं? किंगडम देना चाहते हैं। अगर आपको जो चाहिए, अगर आप विश्वास करें, बाइबल कहती है वो आपको मिल गया। हालेलुया। आपके पास जितना विश्वास है, आप जितना प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए अनफ है, बहुत ज्यादा है आपके पास विश्वास। आपको होलीनेस के साथ खड़े होना है, पवित्रताई के साथ खड़े होना है। आप परमेश्वर का वचन साथ कैरी करना है। एक और वचन में आपको दिखाना चाहता हूं, ये अभी रहता है ना, पढ़िए जरा इसको, इसका भी एक दो स्टेप और है। हाँ, नेचा दा ओह आत्मा सानू मिलिया है। हाँ, क्या मिला है भाई आपको? नेचा दा क्या मिला है? नेचा का आत्मा वरदान है, वो आपको मिला है।
एक नौजवान मुझे मिला इसी हफ्ते। 1 घंटा मैं उसके साथ बैठा रहा। उसे ब्लड कैंसर हो गया था। वो 4 नौजवान लुधियाना में फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे और चारों ही बहुत ज्यादा बीमार थे। वहां डॉक्टर उन 4 नौजवानों का ट्रीटमेंट कर रहा था। एक व्यक्ति नौजवान जिसके साथ मेरी बातचीत हुई, उसने मुझे बताया कि जब मैं बीमार हुआ मैंने माना नहीं कि उसे कैंसर है। उस व्यक्ति को कैंसर था मगर वो माना नहीं कि उसे कैंसर है। जब भी कोई जाता था उसको पूछने, वो यही बोलता था, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। क्या हुआ? एक लड़का सबसे पहले मर गया क्योंकि उसने ये कबूल लिया कि उसे कैंसर है। वो डर से मर गया। अगर आप डरेंगे, डर कहां से है? डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, डर शैतान की ओर से है, डर पाप की ओर से है। डर आपको विपदा में डालता है, डर आपकी आजू को कम करता है, डर आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। अगर आप पवित्रताई में आएंगे, सत्या में आएंगे, तो आप बहुत ही पवित्रताई अपने जीवन में देखेंगे। उसने बताया कि 1 महीने के बाद 2 दिन के लिए डॉक्टर उसे घर भेजते थे कि जाओ 2 दिन के लिए घर जाओ। वो खाना खा रहा था तो उसके पिताजी आए और उसके पिताजी ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? उसने बोला, मैं ठीक हूं। लेकिन उसी समय वो खाते खाते बेहोश हो गया। उसने मुझे बताया कि 10 मिनट पहले मुझे ये फीलिंग आ गई, मुझे कुछ और हो रहा है, मगर फिर भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे कुछ हो रहा है। तो तुरंत उसे उठा के हॉस्पिटल लेके पता लगा 4 ग्राम ब्लड है उसके अंदर, इसलिए वो फेड हो गया। फिर हॉस्पिटल में रहा। जब भी होश आई, किसी ने पूछा आप ठीक है? फिर भी ठीक नहीं था। फिर भी बोला मैं ठीक हूं। उसने बोला कि 12 इंजेक्शन, शायद 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद 12 इंजेक्शन उसे लगे हैं ऐसे उसकी रीढ़ की हड्डी में। और बोलता है कि जब वो इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर किसी भी नौजवान को लेके जाते थे तो 2-2, 3-3 लोग उसके पास जाते थे हौसला देने के लिए। लेकिन मैं ही बोलता, एक लड़का था जो अपने घर वाले लोगों को साथ लेके नहीं वहां जाता था। आप समझते हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? ऐसे ही काल, शैतान आपके ऊपर अटैक लेके आता है। पहले भले अटैक नहीं लेके आता, पहले मनाने आता, प्यार से। पाप प्यार से आता है। प्यार दोस्तों के द्वारा आता है। पाप नेट के द्वारा आता है। पाप गंदी तस्वीरों के द्वारा आता है। पाप चुगली के द्वारा आता है। पाप झूठ के द्वारा आता है। जब भी पाप पहले आएगा, पहले आपका फ्रेंड बन के आएगा, दोस्त बन के आएगा, आपकी मित्र बन के आएगा। जब आप उसमें फंस जाएंगे तो फिर वो और शक्तियों को भेजेगा। अभी आपको मानना है। एक ही वचन में लास्ट आपको देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अगर आप दृढ़ विश्वास से चले, जैसे उकाब ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता है, लेकिन उसे मरने नहीं दिया जाता।
आपके जीवन में भी कभी ऊपर कभी नीचे उतरा चढ़ा आ सकते हैं, मगर आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आप मरेंगे नहीं, जिएंगे, क्योंकि आप प्रभु की महिमा के लिए चुने गए हैं। आप क्या पढ़ रहे थे? पढ़िए। हाँ। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा हमने है। हाँ वही, हम में वही, हाँ वही विश्वास। हेलो, देखिए सुनिए, जब गतसमनी में वो प्रार्थना कर रहे थे, यीशु कितनी बार आए और बोला क्या करो आप? प्रार्थना। हेलो, जागते रहो। क्या करो? जागते रहो। जागते रहो। क्या करो? जागते रहो। आप सोना मत। आप बैठे बैठे भी सो रहे हैं, अगर मेरी बात नहीं सुन रहे आप, इसको घुसने दो, अंदर जाने दो। जब तक ये वचन अंदर नहीं जाएगा आप शुद्ध नहीं हो सकते। ये आपको शुद्ध करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन है, आपके अंदर जाएगा, आप शुद्ध हो जाएंगे। क्या? पढ़िए। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। हाँ, ये मान लो कि आपके जीवन में विश्वास का गिफ्ट है। मानो आप, शैतान बोल नहीं नहीं नहीं, आपके पास कहां किधर गिफ्ट है? ओ अभी तो तू उधर कल ये कर रहा था, ये सोच रहा था, वहां खड़ा था, तू इधर था उधर था। तो आपको शैतान फेल करना चाहता है। आप फेल नहीं हैं, आप फर्स्ट पोजीशन में टॉप कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन सुना नहीं मैं आपका? भाइयों मैंने सुना नहीं आमीन आपका? आज आप क्या कर रहे हैं? टॉप कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे। आमीन, हालेलुया। आप ध्यान रखिए, आपको आमीन क्यों बोलना है? आमीन शैतान को कबा देता है, वो हिल जाता है जब आप आमीन बोलते हैं। वो सोचता अच्छा इतने तुम भी सहमत हो इस वचन से, तुम भी। वो असहमति चाहता है आपकी, तभी आपको टाइम दिया जाता है जोर से बोलो। चलो शुक्र है जोर मेरा लग गया था, आपने बोल दिया। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। हम में क्या है? वही विश्वास की आत्मा। क्या है आप में? क्या है आप में? क्या है? विश्वास की आत्मा। मरी हुई आत्मा नहीं, जिंदा आत्मा, विश्वास की आत्मा। इतनी कमजोर आत्मा है, क्या कार्य करेगी भाई साहब? ये इसको थोड़ा तकड़ा होने दो। ये तकड़ा अभी हो सकते जब आप विश्वास की आत्मा है। हालेलुया। क्या है? आप मानते हैं आपके अंदर क्या है? हाँ, विश्वास का गिफ्ट है आपके अंदर। आप किसी को बोलेंगे अच्छा 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 लो 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 लो, तुम बीमार हो, चलो आओ मेरे साथ, चर्च में चलते हैं, प्रेयर होगी, आप ठीक हो जाएंगे। ये क्या है? विश्वास का गिफ्ट है ये। उसके अंदर गिफ्ट बना देना, पैदा कर देना। झंझट में मत पड़ो, धर्म है, ये है, वो है, कर्म है। हाँ, झंझट छोड़ो। बीमार है, चलो इधर आओ, प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं। परेशान है, चलो इधर आओ, प्रभु आपको चंगा करना चाहते। बस इतना ही काम है। कितने विश्वास करते हैं? क्या? मैंने कुछ नहीं बोला अभी। हालेलुया, धन्यवाद, सल्यूट है आपको, आपने बिना सुने हाथ खड़ा किया, अच्छी बात भी किया है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। हाँ, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। हाँ, आगे। जिसके विषय में लिखा है। जिसके विषय में लिखा है। लिखा है। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? लिखा है। शैतान जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है। हेलो, क्या है?
हाँ, लिखा है, बोलो ऐसे, लिखा है, लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, ऐसे रख, बल्ले ताडे। हाँ, पढ़ भाई। जिसके विषय में लिखा है, हाँ, कि मैंने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास। हेलो, क्या किया? ऐसे जबरदस्त मुट्ठी बंद करके बोलो हालेलुया। आपके बीच में क्या है? आज बरकत का दिन है, मैं बिना बरकत के वापस। हालेलुया। अच्छा लग रहा है आपको? हालेलुया। तभी आप आ रहे ना, आपको अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छा लगे ना लगे, आपको चुना गया है और लिखा है। क्या लिखा है? आपके पैदा होने से पहले ही आपका चुनाव कर लिया गया है। हालेलुया। बोलो फिर, लिखा है। क्या है? लिखा है। आपका चुनाव किया गया है भाई। आप किधर भी भागो, फिर भी पकड़ेगा। चल इधर, चल बैठ इधर। हाँ, कितने साल के बाद आए? 5 साल के बाद, क्योंकि लिखा है। भागो, पकड़ेगा आपको, भागने नहीं देगा। भागने देगा नहीं, भागने, भागो इधर उधर, फिर आराम से पकड़ेगा, ऐसे चुंडी से पकड़ेगा। चल चल इधर। जिसको पकड़ता है छोड़ता। झाड़ी में दर्शन हुआ, बोलो झाड़ी में दर्शन हुआ। भागा, लाठी नीचे फेंक दे, फेंकी, भागा, वापिस वापिस इधर, चूटी से पकड़ा। चल, लाठी पकड़। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा बाबा, कहना अरे बाबा बाबा कुछ नहीं, पकड़, इसे पकड़ना पड़ेगा। पहले तो सांप ही था ना, आप डरते क्यों? लिखा, आप सांपों और बिच्छुओं को रौंद देंगे। बोलो, लिखा है। क्या है? हाँ, लिखा है। क्या है? तो उधर ही वचन पूरा हो गया। अभी प्रभु तो आने वाले हैं, वचन पहले ही पूरा हो गया। आपके जीवन में भी सब कुछ कंप्लीट, 1 3 D बट रेडी। आपको आमीन बोलना और उठाना है बस। मैंने बोला आपने आमीन बोलना तो उठाना है बस। एवं बेचारे ये मुंह बना के ना, कभी किसी कोले ना मुंह लाया करो, कभी किसी ना। हाँ, चाह पींदे बेचारा ये ना बनया करो। खत्म, मैंने बोला खत्म। सब कुछ प्लान आउट किया है, आपने आमीन बोलना है और उठाना है प्रभु के नाम से। यहां एक बहुत लंबा बड़ा टेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर आपकी सब आशीषें रखी हुई हैं। बस बोलो प्रभु आमीन और उठाओ और भाग जाओ। भाग जाओ नहीं, सॉरी, भाग जाओ मतलब खुशी से भागो, वापस फिर आ जाना। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनको मिलता है भाग जाते हैं, उड़ता है इधर उधर, फिर आराम से पकड़ा, चल इधर, फिर मिलता नहीं है, छुपता है। क्यों? भाग्य थे हम। वापिस आओ। मैं सबको यहां प्रभु की वेदी से निमंत्रण देता हूं। ये जगह आपकी आशीष की है, ये जगह आपके चुनाव की है, ये जगह आपकी मुक्ति के लिए निश्चित की गई है। आप प्रभु के घर में आए, स्टार्ट करें नए सिरे से, और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। अभी आप देखें रोमियो 10
उसका सितारा। सो विश्वास सुनने से, हाँ हाँ, डिंगड़िक डिंग डिंग डिंगड़िक डिंग डिंग डिंगड़िक डिंग। ये कौन सा स्विच ऑन कर दिया तूने? हालेलुया। मैं चाहता हूं आप हंसी हंसी में सुने, खुशी से जो आप करते हैं प्रभु बहुत आनंदित होते हैं। जब आपके माथे पे 20 टेढ़ियां होती हैं, आंख टेढ़ी करके देखता है, उधर से उठने की फराक में है, भाग जाऊं, पादरी बंद नहीं कर रहा, आज भाग जाऊं, भागना चाहता हूं, बंद कर दे बाबा। किधर बंद कर दे बाबा? जिसको पकड़ता है छोड़ता, लिखा है। क्या है? मेरे घुटने बाबा बंद कर दे, तू बच गई। किधर छोड़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है सुनने के लिए? बोल यीशु मसीह के नाम की। हाँ पढ़ो। सो विश्वास सुनने से, हाँ विश्वास सुनने से। हेलो, विश्वास, विश्वास कैसे आता है? अच्छा, इधर बड़ी मुश्किल से सुन रहा है, घर जाके कभी सुना? रिपीट सुनो। मैं आज से आपको कहना चाहता हूं, जितने मैंने प्रचारण किए हैं और YouTube पे हैं, सब सुनो, बार बार जाकर सुनना स्टार्ट करो। उसमें आपको नया मिलेगा, नया। क्या लिखता है? सो विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से। विश्वास देखने से नहीं आता। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है। सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम सुनाना ही चाहते हैं, सुनना पादरी जी ये हो गया, पादरी जी वो हो गया, पादरी जी डिग 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 डिग, पादरी जी डा। पादरी बोलो सुनो सुनो, रुको रुको, डू 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 डू। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से। हेलो, कैसे आता है बहन जी, भाई जी? एक आदमी आया पूरे परिवार के साथ। बात क्या है? बात बताने वाली नहीं है इधर, बात ऐसी थी। मैंने बोला 1 हफ्ते के बाद आप ऐसा करना, ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद आ रहा है। मैंने बोला जाओ जाओ, मुझे पता चल गया तुम्हारी हंसी से काम हो गया है। आप समझे मेरी बात? जब आप सुनते नहीं हैं, विश्वास कैसे आता है? सुनने से। सुनने से। अगर यही प्रचारण आप घर जाके एकांत में हेडफोन लगा के एकांत में बैठ के सुनेगा, तो हजारों वचन आपके दिल को छूने वाले और मिल जाएंगे इसमें आपको। अगर आप सुनेंगे तो आप विश्वास की गिफ्ट में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है भाई साहब, जितना ही आप वचन सुनोगे उतनी विश्वास की गिफ्ट में। अच्छा, यह भी ध्यान रखना, सुनना किसे है? जो भी आए उसे नहीं सुनना। बाइबल की फाउंडेशन के वचन को ही ले सकते हैं, मिक्स नहीं। अगर आप वचन सुनेंगे, आप क्या हो जाएंगे? गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जीवन। आप गिफ्ट में आ जाएंगे, गिफ्ट ऑटोमेटिकली गिफ्ट हो जाएगा आपका। आपने साधारण ही बोला, हो जाएगा। क्यों? आप एक गिफ्ट में आ जाएंगे। अच्छा, पढ़िए इसको फिर। विश्वास सुनने से, हाँ, और सुनना मसीह के वचन से सुनना होता है। ओह, सुनना कहां से है? मसीह के वचन से। कहां से सुनना है? मसीह के वचन, मसीह के वचन से होता है। वचन से सुनना है, वचन से बाहर से नहीं।
वचन से सुनना है तो पास्टर देओल खोजेवाला यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां जाके वचन सुनना शुरू करिए। एक वचन रोज सुने, एक प्रचार रोज सुने। आप देखें आप किधर के किधर जाते हैं। सुनता तो आप इधर भी नहीं है। तो ये है परमेश्वर का प्रेम। और जोर से चलाकर बोलो, लिखा है। परमेश्वर दे वड्डे कम्मां नूं अपने जीवन दे विच वेखण लई हुणे सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल पास्टर देओल खोजेवाला ते साडा Facebook पेज पास्टर देओल खोजेवाला।